Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. And all the people, humanity will come together to see the glory of God. The Lord will display His glory to the nations. Now I want to tell you what blessings God has for you in your life in 2014. अब मैं आपको बताना चाहता हूं सन 2014 में परमेश्वर ने आपके लिए आपके जीवन में क्या-क्या आशीषें रखी हुई हैं. In Ezekiel 39 and verse 21, यहेजकेल 39 वचन 31 में God said, परमेश्वर कहता है, I will display my glory in your life. मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करूंगा, ऐसे प्रभु कहता है. I will demonstrate my glory in the nations, says the Lord. प्रभु कहता है कि मैं देशों में अपनी महिमा प्रकट करके दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा. This is a year of spiritual glory. ये आत्मिक महिमा का साल है. Isaiah 40 and verse 5. यशायाह अध्याय 40 वचन 5 में The Bible says the glory of the Lord will be revealed, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रकट होगी and all mankind will come together to see it. और सभी मनुष्य एक साथ आएंगे कि उसे देख सके. This is the year 2014 when God's glory is going to be revealed in the nations, and it shall bring forth the whole of humanity to see the glory of God for the very first time. ये तो 2014 का ये साल है जहां पर परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट होगी और सभी लोग यानी सभी देश देश के लोग परमेश्वर की इस महिमा को देखने के लिए एक साथ इकट्ठे होंगे. सब लोग एक साथ आ जाएंगे कि महिमा देखे. Mark my word. मेरे शब्दों को आप लिख लीजिए. Till now, here and there, a few people, few lakhs of people saw the glory of God. अब तक तो केवल कुछ ही लोगों ने या कहिए कुछ लाखों लोगों ने ही परमेश्वर की महिमा को देखा है. Few of us. हम में से बस कुछ ही लोगों ने. But there are crores and billions who have not experienced the glory of God in the world. लेकिन संसार में ऐसे करोड़ों करोड़ों और लाखों लोग हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर की महिमा का अनुभव नहीं किया है. But this year, लेकिन इस साल God's glory is going to be displayed among the nations of the world. परमेश्वर की महिमा इस संसार के देशों के ऊपर में प्रकट हो जाएगी. And all the people, humanity will come together to see the glory of God. और पूरे लोग पूरी मनुष्य जाति प्रभु की महिमा देखने के लिए इकट्ठा होगी. Would you say a big hallelujah to that? क्या आप इसके लिए जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया? How will this glory come? ये महिमा कैसी आएगी? In Haggai chapter 2 and verse 6, हग्गई अध्याय 2 वचन 6 में God says, I will shake the earth, the heavens, the dry land and the seas in a little while one more time. परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को, समुंदर को, पानी को और सूखी भूमि को कुछ समय के लिए हिला दूंगा. ये कुछ समय के लिए होगा. In 2014, we are going to see the shaking by the Lord in all the nations of the world. सन 2014 में हम देखेंगे कि संसार के पूरे देशों में परमेश्वर सब कुछ हिला दे रहा है, सब हिला रहा है.
The nation shall be shaken. पूरे देश हिलाए जाएंगे, The earth shall be shaken. पृथ्वी हिलाई जाएगी, Heaven shall be shaken. आकाश हिलाया जाएगा, The sea shall be shaken. समुंदर हिलाया जाएगा, Dry land shall be shaken. सूखी भूमि हिलाई जाएगी, And the glory of God will be revealed through that. और परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा प्रकट होगी। Humanity will come to see the glory of God. मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए इकट्ठा होगी। And the next verse says, the glory of the Lord will come upon the earth. और अगला वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर आएगी, Then the desire of the nations will come. और तब देशों की जो मनसा है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी। This glory of God is nothing and nobody else other than Jesus Christ, the desire of the nation. ये जो परमेश्वर की महिमा है वो और कुछ नहीं है, लेकिन केवल यीशु मसीह है, जो हर एक देश की मनोकामना है और इच्छा है। In Psalm 24, 7 and 9, भजन संहिता 24 वचन 7 और 9 में he is called the King of glory. उसे महिमा का राजा कहा गया है। And James 2, 1 says, और याकूब 2:1 कहता है, Jesus Christ, the Lord of glory. यीशु मसीह जो महिमा का प्रभु है। As God shakes the nations, जैसे परमेश्वर देशों को हिला देता है, Jesus, the King and the Lord of glory, will come upon the nations this year. यीशु जो कि राजा है, महिमा का राजा और प्रभु है, वो इन देशों पर आएगा इस साल, And humanity shall see him. और मनुष्य जाति उसे देखेगी। And this year, your blessing, my dear friend, will come as God opens your eyes to see the glory of God and to see Jesus Christ, who is the glory of God. इस साल निश्चय मेरे दोस्तों आपकी जो आशीष है वो आएगी, जैसे परमेश्वर आपकी आंखें खोलता है कि आप यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा के रूप में देखें और आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। You will have a direct interaction with the Lord Jesus Christ himself. आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ में हस्तक्षेप करेंगे, उससे आप मुलाकात करेंगे। Till now you have been praying in faith. अब तक तो आप बस विश्वास से प्रार्थना करते आए हैं, You have been living by faith. आप बस विश्वास से जीते आए हैं, Or you have been living by the prayers of somebody else. या फिर हो सकता है आप किसी और की प्रार्थना से जीते आए हैं। But this year, लेकिन इस साल as the glory of God comes, जैसे परमेश्वर की महिमा आती है, it will connect you directly with Jesus Christ. वो आपको सीधा यीशु मसीह के साथ में जोड़ देगी, And you will have nothing else but Jesus, Jesus, Jesus in your life. और आपके जीवन में बाकी और कुछ नहीं, केवल यीशु 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 और यीशु ही आपके जीवन में होगा। Your life also will be shaken. आपका जीवन भी हिलाया जाएगा, Shaken to connect you 100% with Jesus Christ. आपका जीवन हिलाया जाएगा ताकि यीशु के साथ 100% रूप में जुड़े, And you will see him. और आप उसे देख पाएंगे। And for the ministries and the ministers of the gospel, God says, I will bring you men, I will bring you souls and make you more prosperous than before. परमेश्वर कहता है सेवकाई के लिए और सेवक गण के लिए कि मैं लोगों को तुम्हारे पास में लेकर आऊंगा, मैं इन लोगों को तुम्हारे पास में लेकर आऊंगा, और मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा और ज्यादा संपन्न बनाते चले जाऊंगा। This year, servants of God, you are going to see the greatest number of addition of souls in the greatest amounts as never before in your ministry. इस साल परमेश्वर के दास आप लोग निश्चय ही बहुत सी आत्माओं को अपने सेवकाई में जुड़ते हुए देखोगे, इतनी ज्यादा कि आपने अपनी सेवकाई में से पहले कभी नहीं देखा है। This greatest abundance will come and the prosperity will come in your life and ministry because of the glory of God bringing sanctification that would increase in. ये बहुतायत आपके जीवन में आएगी, ये बढ़ोतरी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर आएगी और आपकी सेवकाई पर आएगी, और ये निश्चित बढ़ती चली जाएगी। God is going to give you great joy adding people in your family this year, and love in your family this year, and unity in your family this year. Let not your heart be troubled. परमेश्वर इस साल आपके परिवार में लोगों को जोड़ता चला जाएगा, आपके परिवार में लोगों को बढ़ाता चला जाएगा, इसलिए आप हिम्मत रखिए, ढाढ़स बांधे, आपका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाते चले जाएगा। Amen. Shall we shout a big hallelujah? आमीन।
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And finally, और अंत में the Bible says बाइबल कहती है in Ephesians 1:18, इफिसियों 1:18 में God will give you the riches of His glorious inheritance. परमेश्वर अपने महिमा के उस धन की बहुतायत या उसका जो खजाना है वो आपको देगा। Yes, Philippians 4:19 will come to pass this year for everyone who will surrender to God's glory and sanctification. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा और उसके शुद्धिकरण को समर्पित करेगा उसके लिए फिलिपियों 4:19 उसके जीवन में पूरा होगा। फिलिपियों 4:19 का जो वचन है ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूरा हो जाएगा। My God shall supply all your needs according to His riches in glory. मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है। The Lord told me according to Matthew 13 and verse 8. मत्ती अध्याय 13 वचन 8 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बताया है। The Lord said, everyone who has sown the seed of the gospel through their offerings or sown the seed in the ministry. हर एक व्यक्ति जिसने अपनी भेंटों के द्वारा सेवकाई में बीज बोया है, सुसमाचार प्रचार के लिए बीज बोया है, हर एक व्यक्ति जिसने बीज बोया है। And also people who have sown the seeds by preaching to the people. और साथ ही जिन लोगों ने लोगों को प्रचार करने के द्वारा बीज बोया है, प्रचार के माध्यम से बीज बोया है। You will have 30 times returns this year. इस साल आप 30 गुना प्रतिफल पाएंगे, 30 गुना पाएंगे। You'll have 60 times returns this year. इस साल आप 60 गुना प्रतिफल पाएंगे। 100 times returns this year. इस साल आप 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। Shall we go for the highest number? Shall we all shout 100 times? आइए सबसे बड़े नंबर को कहें 100 गुना। He's going to do it in every ministry. हर एक सेवकाई में वो इसे करेगा। Every ministry which has faithfully sown the seed of the gospel and preached wherever there were waters will reap 100 times financial returns this year. हर एक सेवकाई जिसने बड़ी ईमानदारी से बीज बोया है, प्रचार किया है और जब भी समय मिला बराबर उसे पानी दिया है, इस साल वो हर एक सेवकाई 100 गुना प्रतिफल प्राप्त करेगी। निश्चय ही वो 100 गुना प्रतिफल पाएगी। Isaiah 32:20 says so. यशायाह 32 वचन 20 ये कहता है। Truly Malachi 3:10 and 11 will be fulfilled. मलाकी अध्याय 3 वचन 10 और 11 जरूर पूरा होगा। God says, I will open the storehouses of heaven and pour down a blessing that you cannot hold. परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर इतनी अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा कि तुम उसे इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे। वो इतनी बहुतायत की होगी कि तुम उसे जमा भी नहीं कर पाओगे, वो भरपूरी की होगी। This year is going to be a year of financial prosperity and pouring of financial blessings upon you. ये साल तो निश्चय आर्थिक संपन्नता का और आर्थिक आशीषों का आपके जीवन के ऊपर में बहुतायत से उंडेलने का साल होगा। That is the love Jesus has for you. यीशु ने आपके लिए ऐसा ही तो प्रेम रखा है, Because you have given. क्योंकि आपने दिया है। You have given the word of God. आपने परमेश्वर का वचन दिया You है, have prayed for the people. लोगों के लिए प्रार्थना की है, You have given your offerings. आपने अपनी भेंटें दी हैं। This year also. इस साल भी Let us be filled with God's glory. परमेश्वर की महिमा से भर जाए। Look only to Jesus. केवल यीशु की ओर देखें, Live only for Jesus. केवल यीशु के लिए जिए, Have sanctification. शुद्धिकरण पाए And give our offerings freely, regularly. और नियमित रूप से बड़े आजादी से अपनी भेंटें देते जाएं। Whether we are an individual, whether we are a business, whether we are a ministry, let us give. चाहे हम व्यक्तिगत रूप में दे, चाहे बिजनेस के रूप में दे या चाहे सेवकाई के रूप में दे, लेकिन निश्चय ही देते चले जाएं, देते चले जाएं। Let us give for the gospel to be preached. सुसमाचार प्रचार के लिए देते चले जाएं। Not to be put in fixed deposit and stored somewhere, but let us give for the preaching of the gospel, for the praying of the people. हम किसी फिक्स डिपॉजिट में उसे कहीं दबा कर न रखें, लेकिन सुसमाचार प्रचार के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इसे देने वाले हो जाएं।
Let us give to the poor people and bring them to the knowledge of Jesus Christ and give them hope in life. और गरीब लोगों को दे, कंगालों को दे, और यीशु मसीह के अंदर उन्हें लेकर आए और उन्हें जीवन की आशा देने वाले हो। The glory of God will come upon you. परमेश्वर की महिमा आप पर आएगी। No devil will be able to touch you this year. कोई शैतान आपको इस साल छू नहीं पाएगा। The Lord told me, प्रभु ने कहा है, as you walk under the glory of God in righteousness, He will never allow any devil, any witchcraft to touch you this year. जैसे आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते चले जाएंगे, वो कभी शैतान को अनुमति नहीं देगा कि इस साल कभी शैतान आपको स्पर्श भी कर सके। This will be a devil-free year for you in the name of Jesus. आज ये साल जो है वो आपके लिए शैतान से आजादी का साल होगा यीशु के नाम में। Shall we praise the आइए प्रभु Lord? की स्तुति करें। Do you believe क्या आप that? विश्वास करते Do you हैं? want क्या that? आप ये चाहते हैं? Give Jesus all the glory. यीशु को सारी महिमा दे। God will increase you greatly. परमेश्वर आपको बहुत आयत से और महान रूप में बढ़ाते चले जाएगा। This year Isaiah 60:22 will be fulfilled. यशायाह 60 वचन 22 इस साल पूरा होगा। अध्याय 60 वचन 22 पूरा होगा A little one shall become 1,000. कि जो छोटे से छोटा है वो 1000 होगा। You may say you're a little one, आप शायद कहें कि आप बहुत ही छोटे हैं, but you will become 1,000. लेकिन आप 1000 हो जाएंगे। In your spiritual life, you'll become 1,000. You'll be connected directly to Jesus. आत्मिक जीवन में आप 1000 हो जाएंगे, सीधा यीशु के साथ में आपका संपर्क होगा, जुड़ जाएंगे आप। In your finances, you will increase 1,000 times. You will have the prosperity of Jesus. अपने धन में आप 1000 गुना संपन्न होते चले जाएंगे, यीशु में आप सफल और संपन्नता पाएंगे। In your ministry and in your family, you'll have the increase of people coming together in unity and increasing in numbers this year. इस साल आपके परिवार में और आपकी सेवकाई में लोग जुड़ते चले जाएंगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे। आपके परिवार में और आपकी सेवकाई में इस साल आप बहुत आयत से बढ़ोतरी और बहुत ही उन्नति प्राप्त करते चले जाएंगे। This is a year of spiritual glory. ये आत्मिक महिमा का साल है। Everything will happen as you move into the spiritual realm and get connected to Jesus. ये सब कुछ होगा जब आत्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और यीशु के साथ में जुड़ते चले जाएंगे। And He's going to connect all of us and the world itself to the glory of God. और वो हम सबको और पूरे संसार को परमेश्वर की महिमा के साथ में जोड़ देगा। The Lord will display His glory to the nation. परमेश्वर अपनी महिमा देशों पर प्रकट करेगा। All people of the world together will see the glory of God. और पूरे लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। This year is the beginning of the preparation of the move of the Holy Spirit across the world to prepare the world for the second coming of Jesus Christ. ये साल तो पवित्र आत्मा का पूरे संसार में अद्भुत रीति से चलन का साल होगा, ताकि संसार को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार कर सके। 2014 is the beginning of God's servants and God's children receiving gold and silver and prospering in the world to prepare the world for the second coming of Jesus Christ. 2014 एक ऐसा साल होगा जहां पर परमेश्वर की संतान सोना और चांदी प्राप्त करेगी, ताकि इस संसार को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके। प्रभु की संतान संपन्न होगी। 2014 is the year where God will network families, God will network ministries, God will network people who are not saved after saving them and increase the numbers who would bring the gospel to the nations of the world. 2014 ऐसा साल होगा जहां पर परमेश्वर परिवार को एक साथ जोड़ेगा, सेवकाई को एक साथ जोड़ेगा और वहां पर उनके जीवन में बदलाव लेकर आएगा और यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। For that, the Lord will pour His Holy Spirit. और उसके लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा उंडेलेगा। Shall we look to God आइए हम परमेश्वर को देखें and receive this prophecy? और इस भविष्यवाणी को ग्रहण करें। Father, पिता, fulfill this promise. इस वचन को पूरा कीजिए।
You have said every time you give us the prophecy, we have to wait for it. आपने हमेशा कहा है कि जब भी आप हमें भविष्यवाणी देते हैं हमें उसका इंतजार करना है। As we wait for it to be fulfilled, we pray that this prophecy shall be fulfilled word by word in Jesus' name. जैसे हम इस भविष्यवाणियों का इंतजार करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये भविष्यवाणियां शब्द ब शब्द पूरी हों। Father, you have said in Luke 18:7 and 8 that you will fulfill the prophecy as we pray over it night and day quickly. पिता, जैसे कि आपने लूका 18:7 और 8 में कहा है कि आप भविष्यवाणियों को पूरा करेंगे जैसे कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं। Lord, fulfill it quickly. पिता, आप इसे जल्दी पूरा कीजिए। Master, we pray that every promise that you have given to us will be fulfilled by your word. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी भविष्यवाणियां दी हैं वो शब्द पर शब्द पूरी हो। Lord, let thy children go in peace this year. पिता, होने दे कि आपके बच्चे इस वर्ष में शांति से रहें। Let the devil which is stopping your blessings be bound, as you said, in Jesus' name. और जो शैतान इनकी आशीषों के लिए रुकावट है वो आपके नाम से तोड़ा जाए। As you fulfill your prophetical word and your promises, let them go out with joy, prosperous and blessed, Lord. जैसा कि आप अपने वचनों को और वायदों को पूरा करते हैं, होने दे कि ये खुशी से रहें और उन्नति को प्राप्त करें। Thank you for doing it. इसे पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let your grace abound in the life of your children. होने दे कि आपके बच्चों पे आपका अनुग्रह बना रहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no sickness to worms, God cannot heal it. There is no loss too big, He cannot redeem it. There is no need too high, God cannot fill it. There is no sin too great, He cannot forgive it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. मेरा नाम मिलिता नाग है। मैं रायपुर गांधीनगर पंडरी से हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम इब्राहिम नाग है। और मैं ड्राइविंग काम करता हूँ। आरती बिल काम बोल के एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, वहाँ मैं 8-10 साल हो गया काम कर रहा हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं। उस समय मेरे पति अकेले कमाते थे और हम लोग का किराए का मकान है और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं।
तो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने के कारण से मैं अपने बच्चे लोगों का सही समय में सही चीजें नहीं दिला पाती थी। महंगाई के देखते में ये नहीं हो पाता है। 3-3 बच्चे हैं, सब प्राइवेट स्कूल में। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊंगी। गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई है जरूर, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो इसीलिए हर कोई चाहता है आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में रहे। तो हम लोग भी गवर्नमेंट में डाले थे, लेकिन बच्चे लोग मारा पीटी। एक बार तो बड़ा लड़का को मार दिया तो बेहोश हो गया था। मैं बस सुनी थी कि तेली बांधा जलधारा कॉलोनी के पास ही प्रार्थना भवन है करके, पर मैं देखी नहीं थी, मैं उस तरफ कभी गई भी नहीं थी। कई लोगों ने उनको बोला कि प्रार्थना भवन जाना, तो प्रार्थना भवन गई, वहाँ भी प्रार्थना कराई। और वहाँ जैसे पहुंची तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपनों के ही बीच में हूँ। और जब मैं गई अंदर तो मैं उनके पास सारी बात बताई, यहाँ तक कि मैं साल भर स्कूल का फीस नहीं पटाई थी, तो मेरे बच्चे लोगों का रिजल्ट नहीं बताए थे वो लोग। तो वो लोग मेरे लिए बहुत अच्छे से प्रेयर किए और मैंने भी उनके साथ प्रेयर की। और फिर वहाँ से आई, आके एक जगह फिर एप्लीकेशन देने के लिए गई। मैं रास्ते में ही फ़ोन करके मैं प्रार्थना भवन में बताई कि मैं अभी एप्लीकेशन देने के लिए जा रही हूँ करके। तो वो लोग फिर से मेरे लिए रोड में खड़े होकर प्रेयर किए। फिर दूसरे दिन मेरे को कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है, आप आ जाइएगा करके। उसमें मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैं गई 12 बजे इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग मेरे बारे में तो पूछे ही पूछे, मेरे बच्चे लोगों के बारे में भी पूछे। तो फिर वो लोग बोले कि तुम्हारे बड़े लड़के को लेकर के आना करके। फिर मैं सोचते रह गई कि ये लोग मैं जो बताई मेरे काम के बारे में, वो लोग तो सुने ही नहीं। वो लोग मेरे बच्चे लोगों के बारे में पूछे और मैं उसके लिए तो गई नहीं थी। जो भी होगा अच्छा ही होगा ऐसी करके मैं अपने बच्चे को लेके गई, बड़ा लड़का को। वो लोग बोले कि फॉर्म भरो ऐसी करके, और उसमें फॉर्म भरी तो बोले कि कल से स्कूल आना ऐसी करके बोले मेरे बड़ा लड़का को। और वो लोग तुरंत भर्ती कर लिए। और वो ऐसा जगह है जो 1 साल पहले से वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है अगर पढ़ने का है तो। मेरा नाम योगेश नाग है। मैं पहले 7वीं पढ़ता था, अभी मेरा एडमिशन 8वीं क्लास होली क्रॉस में हुआ है। वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बहुत ही अच्छा उसका आदत व्यवहार बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ और आगे बढ़ के पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। फिर मेरे को तीसरे दिन कॉल आया कि तुम ड्यूटी के लिए आ जाना 8 बजे करके। ये तो सामान्य बात नहीं है, मतलब ये प्रभु की चमत्कार ही होगा। और आज मैं काम कर रही हूँ और अपने परिवार की और अपने पति की हेल्प कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला रही हूँ। और मैं अपने बड़े बेटे को भी वहाँ युवा सभा में भर्ती की हूँ। मेरा समस्या बहुत कुछ हल्का हो गया है और बढ़िया से हम लोग जी रहे हैं। आशीष लेकर नीचे आती है।